Hello everyone, I'm Swasha Kashyap working as an assistant professor in Access Colleges, Kanpur. The topic which I will discuss in today's lecture is data structures and algorithm. Here I will cover these topics in my lecture. First one is data structure, second one is categorization of data structure, third one is operations on data structures, fourth one is algorithm and efficiency of an algorithm. Now what do you mean by data and data structure? Data means collection of information or raw facts is known as data or information. Data structures means organization of data so that it can be used efficiently. Here the most important term is efficiency. Next is algorithm. Algorithm means step-by-step solution to a particular problem, or we can say that step-by-step instruction is known as an algorithm. Program means implementation of an algorithm in some programming language is known as program. अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि हम किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, वो है डेटा स्ट्रक्चर. अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बेसिकली हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबल वेज़ हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, या उसकी क्या पॉसिबल वेज़ हैं या क्या स्टेप वाइज सोल्यूशन है, उसको हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम. अगर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की तो जो भी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जैसे कि C++, जावा, एनीथिंग. नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट मीन्स here we have any problem and we need to solve the problem, then what are the possible ways through which we can solve that particular problem. So we can write different types of algorithms for that particular problem. Next is representation of logical relationship existing between different elements of data. That means there exists a logical relationship between different types of data elements. Next one is a specialized format for organizing and storing data in memory that considers not only the element stored, but there exists a relationship between each and every element or data element or data item of data structure. In short, program is nothing but the combination of algorithm and data structure. Next is classification of data structures. Here we can categorize the data structures in different types, two different types. First one is primitive data structure and second one is non-primitive data structure. Primitive data structures में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, data structures को हम primitive and non-primitive data structure में classify कर रहे हैं. Primitive में है integer, real, character and boolean. Non-primitive में है linear and non-linear. लीनियर में हमने फर्दर क्लासीफाई किया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. नॉन लीनियर में है ट्री एंड ग्राफ. नेक्स्ट है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, मतलब जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम बेसिकली बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप्स विच आर सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. जो बेसिक टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के वो क्या हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड बूलियन. ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे. ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव अगर हम टर्म्स को स्प्लिट करें तो नॉन प्रिमिटिव का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रिमिटिव मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है. दैट मीन्स दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनीथिंग, दे आर एक्चुअली in their original form. When we are talking about non-primitive data structures, that means they are derived from something. That means they are derived from primitive data structures. Primitive data structures के थ्रू उन्हें हम derive कर सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि वो सेट है homogeneous और heterogeneous data structures के, वो है non-primitive data structures, जिनको हम further classify कर सकते हैं linear and non-linear डेटा स्ट्रक्चर में. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है. लीनियर का मतलब क्या है, जो कि लीनियर फॉर्म में है, मतलब सीक्वेंशियल फॉर्म में है. मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो लीनियर फॉर्म में है, सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज्ड हैं. इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्ड इन अ लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब जो भी एलिमेंट्स है डेटा स्ट्रक्चर्स के, अगर वो लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. जब हम बात करें एरे की तो एरे बेसिकली क्या है, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इज नोन एज एरे. मतलब जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो बेसिकली होमोजीनियस है, मतलब उनका जो टाइप है बेसिकली वो सिमिलर है, दे आर ऑफ सिमिलर टाइप्स. तो वो बेसिकली क्या हो गया, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इज नोन एज एरे. यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंट ए
यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक एरे ए लिया है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, और जो वैल्यू बेसिकली क्या है, 5 वैल्यूज़ को वो होल्ड कर सकता है, 5 वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है। मतलब जो एरे है बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें जो डिफरेंट इंडेक्स लोकेशंस बेसिकली होंगी वो क्या क्या होंगी, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ऐसे कर करके ए ऑफ 4 तक, मतलब A0, A1, A2, A3, A4, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स को वो होल्ड करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन से उन वैल्यूज़ को वो स्टोर करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली A0, A1, A2, A3, A4, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हम होल्ड कर सकते हैं, 5 होल्ड कर सकते हैं, जिन सब का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, और एरे का नेम बेसिकली क्या है, A। ये था एरे के बारे में, मतलब होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब जिन सब का टाइप क्या है, सेम है। जब हम बात करें लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। सेपरेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट एक नोड की तरह वर्क करेगा। हर नोड पे 2 फील्ड होगी, एक डेटा फील्ड और एक होगी नेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगी, मतलब जो भी डेटा है इन्फॉर्मेशन इसकी वैल्यू को स्टोर करेगी। नेक्स्ट फील्ड इसके बाद वाली जो नोड है उसका वो एड्रेस कंटेन करेगी, मतलब यहाँ पे एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये दोनों नोड आपस में इस लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये जो नोड है इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है वो एड्रेस कंटेन कर रही है इस वाली नोड का, ये है लिंक लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 2 टर्म्स और हैं, एक है स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू बेसिकली दोनों हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो भी हमारी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है हम उसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैक और क्यू हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, अगर हमें जो भी एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं जिस ऑर्डर में, अगर उसके हमें ऑपोजिट ऑर्डर में एलिमेंट को अगर हमें रिट्रीव करना है तो हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वो किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में हम एलिमेंट को रिट्रीव कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में जो है सबसे पहले इंसर्ट किया उसे हमने सबसे लास्ट में रिट्रीव किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उस केस में हम स्टैक ऑफ प्लेट्स बेसिकली इसका एग्जाम्पल है, मतलब जो प्लेट्स रखी हैं, जो सबसे पहले जो प्लेट रखी गई उस प्लेट को हम सबसे लास्ट में ही रिट्रीव, सबसे फर्स्ट टाइम जो प्लेट रखी गई है मतलब लास्ट इन, वो जो सबसे फर्स्ट प्लेट रखी गई मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब वो सबसे लास्ट में निकाली जाएगी, और जो सबसे पहले प्लेट रखी गई मतलब जो सबसे टॉप पे है वो सबसे फर्स्ट रिमूव की जाएगी। मतलब कि अगर हम स्टैक की बात करें तो सिर्फ हम एक एंड से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि टॉप ऑफ द स्टैक है। क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एलिमेंट को, जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में अगर हमें एलिमेंट को रिट्रीव करना है तो हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, मतलब कि लास्ट इन लास्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है। जिसका एग्जाम्पल है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, मतलब अगर हमें रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जा रहे हैं तो उस केस में क्या, अगर हमें रिजर्वेशन कराना है तो जो वहाँ पे बोला जाता है मेक अ लाइन, एक क्यू हमें मेंटेन करनी है। क्यू मेंटेन करनी है मतलब जो लाइन में सबसे पहले खड़ा होगा उसे ही सबसे पहले वो टिकट बुक कर सकता है अपना। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। या तो हम लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, अगर हम बुक्स इश्यू कराते हैं तो वहाँ पर भी हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जो कि डिराइव किए गए हैं लीनियर डेटा, जो कि डिराइव किए गए हैं जो कि किसी चीज़ से डिराइव्ड है, मतलब या तो वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, डिराइव्ड हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ डेटा एलिमेंट इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि सीक्वेंशियली नहीं रैंडमली अरेंज्ड है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल आर नॉट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर देन इट इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके एग्जाम्पल हैं ट्री एंड ग्राफ। ट्री का मतलब क्या है, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं उन सब के बीच में क्या हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम बात करें जैसे कोई स्टूडेंट है, उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो जो भी कंसर्न फैकल्टी है वो उससे कांटेक्ट करेगा, उसके बाद उस फैकल्टी के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है हायर अथॉरिटीज़ के पास फॉरवर्ड होगी। तो वहाँ पे क्या वो एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही फैमिली में भी क्या एक फैमिली ट्री है, ठीक है, पेरेंट, फिर उसके बाद उनके चाइल्ड, फिर वो सिबलिंग्स। तो बेसिकली क्या यहाँ पे हम हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ एक ऐसा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिसेस एंड एजेस को कंटेन करता है। वर्टिसेस को हम नोड्स भी बोल सकते हैं एंड एजेस को हम लिंक्स भी बोल सकते हैं। जिन वर्टिसेस और
एजेस के बीच में बेसिकली जो भी नोड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, वो है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन लीनियर है। नेक्स्ट है क्या क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स पे, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं हम जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें एक्सेस करना, उनकी वैल्यू को प्रिंट करना एग्जैक्टली वंस। इंसर्शन का मतलब क्या है, जो भी हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू को जो है हमें पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट या डेटा आइटम हमें ऐड करना है किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो है इंसर्शन। डिलीशन का मतलब क्या है, रिमूविंग अ वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज डिलीशन। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज सर्चिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट is sorting. Sorting means arranging all the data elements in some logical order which can be either ascending or descending order. That means increasing or decreasing order. मतलब जो भी हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं हम किसी ऑर्डर में अरेंज करें, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Merging means combining the two sorted array into a single sorted sequence is known as merging. Next is algorithm. Algorithm means step-by-step solution to a particular problem is known as algorithm. Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. मतलब जो भी हमारी एल्गोरिथम है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को कंटेन करेगी कि इन्हें हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट रिसीव हम कर सकें। Algorithms are generally created independent of underlying languages. That means it is independent of any programming language. Next is there are different types of characteristics of algorithms. First one is unambiguous. Unambiguous means algorithm should be clear and unambiguous. मतलब जो meaning है algorithm की वो clear होनी चाहिए, unambiguous होनी चाहिए, मतलब it does not leads to multiple meaning. It should lead to only single meaning. इनपुट की बात अगर हम करें तो कोई भी एल्गोरिथम है वो ज़ीरो या उससे ज़्यादा इनपुट को बेसिकली वो टेक करे। आउटपुट की अगर हम बात करें तो कोई भी एल्गोरिथम है वो कम से कम एक आउटपुट जनरेट करे। इनपुट कम से कम ज़ीरो और आउटपुट कम से कम एक का मतलब क्या है, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें सिर्फ सिंपली हेलो प्रिंट करना है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उस केस में क्या हो गया, ज़ीरो इनपुट हो गया। आउटपुट हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो कि क्या है, हेलो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी एल्गोरिथम में बेसिकली वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी एल्गोरिथम में वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब कि फिक्स्ड होने चाहिए। इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी एल्गोरिथम है वो फिजिबल होनी चाहिए जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उन सबके साथ। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कोई भी एल्गोरिथम है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मतलब हम जो भी एल्गोरिथम लिखते हैं वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट इज हम इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या है, इसमें सबसे पहले दो नंबर्स हम ऐड करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अनएम्बिगुअस, मतलब जो एल्गोरिथम की मीनिंग है वो क्या है, क्लियर है और सिर्फ सिंगल मीनिंग लिख कर रही है। मतलब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसके लिए हमने एल्गोरिथम लिखी है जिसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स है फाइनाइट है। टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रही है। फिर हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक नॉर्मल फॉर्मेट में है, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या किया है, स्टार्ट किया एल्गोरिथम जिसमें हमने 3 इंटीजर लिए ए, बी और सी, जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू को डिफाइन किया है। फिर हमने ए और बी को ऐड किया है जिसकी वैल्यू हमने स्टोर की है सी में। लास्ट में हमने सी को प्रिंट किया, फिर वहाँ पर हमने होल्ड कर दिया है। मतलब ये सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम की उन सबको कवर करा है। जैसे कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अनएम्बिगुअस, मतलब एल्गोरिथम की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इनपुट की तो इसमें हम कितने इनपुट्स ले रहे हैं, 2 इनपुट ले रहे हैं, ए एंड बी, एक आउटपुट वो सी जनरेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम इंडिपेंडेंट की तो ये किसी भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, किसी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनाइटनेस की, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल 7 हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम का मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट कब होगी, तो वो 2 पैरामीटर के बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं। एक तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है नंबर ऑफ कंपैरिजंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मैक्सिमम टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग एन एल्गोरिथम इज नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
और अगर हम बात करें कोई भी एल्गोरिथम एफिशिएंट कब है, कोई भी एल्गोरिथम एफिशिएंट तब होगी अगर वो कम स्पेस ले और वो कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में, तो वो बेसिकली क्या है, एफिशिएंट एल्गोरिथम है। थैंक यू सो मच।